फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उनके जो पिटिशन में था, देयर वर 7 प्रेयर्स टोटली, 7 प्रेयर्स थे, and out of those 7 prayers, the Supreme Court Constitution Bench has rejected 5. Only 2 prayers have been granted. So to claim that this is a victory is clutching at a piece of straw from defeat. Those 2 prayers, one was about the governor. The governor should not have called the floor test. There was no effect of that because the floor test was never faced by Uddhav Thackeray. He ran away from that floor test. So that was an irrelevant victory. It's a very hollow victory, sham victory, because it has no practical effect. The government of Eknath Shinde and Devendra Fadnavis has been given legal cloak by the Constitution Bench. It is a government which the governor rightly installed in power after Uddhav Thackeray resigned, and there was a vacuum in the state of Maharashtra. Now, the other prayer which was granted was that Mr. Rahul Narvekar, who was the speaker on the 3rd of July, elected speaker unanimously, on 3rd of July, his recognition of Bharat Gogavle as Chief Whip has been set aside by the Honorable Supreme Court. But while setting it aside, the Supreme Court has not ruled out Bharat Gogle from again being recognized as the Chief Whip. The Supreme Court has merely said that the decision to recognize Chief Whip Bharat Gogavle as the Chief Whip was hasty because it overlooked certain very, very relevant criteria for deciding who the Chief Whip is. And they have asked Mr. Rahul Narvekar as Speaker to revisit this matter, decide on the basis of the constitution of Shiv Sena and on the question of who is the political party, and then decide who was the Chief Whip at the relevant times when disqualification petitions were made. So, in sum and substance, this is a rebuttal of what is being said by Uddhav Thackeray repeatedly. As I said, he's clutching at pieces of straw. He has lost 5 prayers out of 7. One, as I said, is a prayer which is of no relevance because the governor's decision to hold a floor test was never faced by him. The floor test was never faced by Uddhav Thackeray and was of no consequence. He resigned and his government fell because of his recognition, which the Supreme Court has recognized, and the Supreme Court has recognized the legality of the newly installed government. Now, the only question is of the disqualification petitions, which I have no doubt that the Speaker will decide again, and he will decide it on the basis of the guidelines laid down by the Supreme Court in yesterday's order. He will revisit, he will first decide the question of whether notifications which were issued against, notices which were issued to him by MLAs of Shiv Sena under Article 179C, he will first decide whether those are valid. He will then decide the question of who is the Chief Whip, and then he will decide the question of disqualification. After having decided these 2 preliminary questions, he will then decide the question of disqualification on merits after giving reasonable time for everybody to file a reply, after hearing everybody in person, if they so desire, and after passing a reasoned order. In short, following the rules for disqualification as laid down by the Maharashtra, as prescribed by the Maharashtra legislators. Any questions? So you can. सर, इस रिजनेबल टाइम की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि इसको लेकर कई दावे किए जा रहे हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि 3 महीने के अंदर लेना पड़ेगा. एक जजमेंट का हवाला देकर बताया. नहीं, वो एक एस्टिमेट है. 3 महीने का जो समय है वो एस्टिमेट है कि क्योंकि 1-2 प्रिलिमिनरी इश्यूज को भी डिसाइड करना है पहले, जैसे मैंने अभी बताया, तो कम से कम 3 महीने लग जाएंगे. रीजनेबल टाइम इन परिस्थितियों में
3 महीना है ही, उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि 15 दिन में ही कम से कम, मैं तो कम से कम कह रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 3 से 6 महीने में हो जाना चाहिए। आप देखिए, ये तो कितने बहस क्या होगी स्पीकर के सामने, कौन से यदि उन लोगों को कोई विटनेसेस एग्जामिन करना है। सो और देयर आर ऑल दीज सर्कमस्टेंसेज विच विल come to bear on the question of time, but reasonable will depend on the length कि जो disqualified MLAs हैं वो उनके strategies क्या हैं, उनके arguments क्या, जैसे हमें तो पता नहीं कि constitution bench judgments कितने देर तक चलते हैं, ये तो nobody can predict, so it will all descend, but हम तो ये तो एक rough estimate है। राहुल नार्वेकर जी का अपॉइंटमेंट ही गलत है, ये उद्धव ठाकरे आज कह रहे हैं कि जो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वो तो इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट has rejected that prayer. That prayer was made in paragraph 85 of the judgment. Sorry, in paragraph 85 at page 68, that this is the conclusion. Therefore, this court is of the opinion that the Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly is the appropriate constitutional authority to decide the question of disqualification under 10th schedule, and that is Rahul Narvekar, this present Speaker. सर, आपने जो प्रेयर की थी उसमें से कितनी प्रेयर सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराई? जिस तरह से आपने बताया उनके प्रेयर, हमारे सारे प्रेयर्स सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, मंजूर कर दिया। अध्यक्ष को लेटर लिखने वाले सर मैं से जो स्पीकर को लेटर लिखना लिखेंगे वो लिखेंगे जो डिस्क्वालिफाइड एमएलए है। हाँ, वो कह रहे हैं कि लिखेंगे तो लिखने दीजिए, वो स्पीक करने वाले हैं वो जल्दी, हाँ वो जितना जल्दी हो सकता है करने दीजिए। एक सुप्रीम कोर्ट का कल ऑब्जर्वेशन था कि दे कुड हैव कंसीडर्ड इन स्टेटिंग द ठाकरे चीफ मिनिस्टर कंसीडर्ड दैट ही नॉट रिजाइन एंड दे हैव साइटेड दिस ऑब्जर्वेशन टू सीक रेजिग्नेशन ऑफ द करंट गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र। कंसीडर्ड मतलब नॉट वी वुड हैव डेफिनेटली डन इट। कंसीडर्ड मतलब सोच समझ के आपके बहस सुनने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे, थोड़ी कि आप मांग लिए और हमने, यदि आप वो रिजाइन नहीं करते तो हम अवश्य ही कर लेते। Yes, they are seeking resignation on moral ground, but there are no moral grounds left. What are the moral grounds? There is no moral. The morality of the whole question is misconceived because the morality in this situation is you broke a pre-poll alliance. वो सब भूल गए। आपके जितने भी वोट्स और सीट्स थे वो बीजेपी अलायंस और मोदी साहब के करिश्मा के वजह से आप हासिल किए हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये जो मामला है कौन चीफ विप रहेगा वो अभी क्या नाम स्पीकर राहुल नार्वेकर को फिर से डिसाइड करना, और गाइडलाइंस दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में, उस आधार पे वो डिसाइड करेंगे कि चीफ विप कौन बनता है। व्हीप और गणनेता ये दोनों नियुक्तियां जो है वो गलत रही, अवैध रही, ऐसा जजमेंट है कि गणनेता करके एकनाथ शिंदे का जो अपॉइंटमेंट है उसको लेकर भी जजमेंट में कुछ कहा गया है। तो क्या ये बातें जो इलेक्शन कमीशन के सामने जो केस थी और उसको चैलेंज किया गया है उसके ऊपर असर पड़ेगा कुछ? बिल्कुल नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट, बोथ आर इंडिपेंडेंट कंप्लीटली। देख तो ईसीआई का जो डिसीजन है वो इससे कोई ताल्लुकात नहीं। गवर्नर के विरोध में भी कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, कल के अधिकारों का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया अधिकारों का। गवर्नर प्लस राहुल नार्वेकर जी के ऊपर जो स्ट्रिक्चर पास किए कि उन्होंने नहीं, राहुल नार्वेकर के ऊपर कोई स्ट्रिक्चर नहीं पास किए गए। किसने कहा ये? इलीगल पुराना भरत गोगोली का सिर्फ, हाँ वो स्ट्रिक्चर नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा कि उनको रिकंसिडर करना चाहिए, और रिकंसिडर करने के बाद भी हो सकता है कि राहुल नार्वेकर दोबारा इनको रिकॉग्नाइज करेंगे। ये रूल्ड आउट नहीं है। ये स्ट्रिक्चर्स को कैसे देखते हैं आप? ये स्ट्रिक्चर नहीं है, वो तो उन्होंने कहा कि सर्टेन गाइडलाइंस हैं जो उन्होंने फॉलो नहीं की। उनको ये देखना चाहिए था कि एट दैट टाइम पॉलिटिकल पार्टी विच वॉज द शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट फॉर चीफ विप, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे क्या था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो मान्यता दी है एकनाथ शिंदे की सेना करके, उसको क्या रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जा सकता है? नहीं, प्रोस्पेक्टिवली
prospectively. So it was said that it's wrong for Mr. Singh and Mr. Thackeray to say that they have won. So after reading the judgment, do you consider that Shinde faction, do you consider it as a win for Shinde faction only because the status quo hasn't been restored? That's the main prayer. They wanted with the minority government, they wanted with the minority support, they wanted to dislodge a government which had majority support. It's contrary to democratic norms. The rule of all parliamentary democracy is majorities, right? So by suggesting that some people were liable to be disqualified, who were not actually disqualified. Disqualification is, there's no such thing as deemed disqualification. Disqualification is a process which has to be decided on a quasi-judicial basis by the speaker. That was never done. That will be done now once they make this application. So the main prayer, they thought that they are going to get their government, they wanted to set the clock back and get Uddhav Thackeray back as chief minister. That is their biggest disappointment. Now they are clutching at pieces of straw. Let them, they are entitled to do the best they can to recapture power in this way without a majority. They can do it. Legally they can, instead of now facing people politically, they now want to try further and further legal stratagems. So far, they have lost at every stage, as you have seen. So, गवर्नर ने अपने पावर का मिसयूज किया है, इसे उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी वो बताया। देखिए, मैं उस फाइंडिंग से सहमत नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो आवश्यक नहीं था इस इशू में जाने के लिए, क्योंकि असर तो कुछ था ही नहीं। Whether he was right or whether he was wrong in deciding that Uddhav Thackeray had lost his majority, वो इशू से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फ्लोर टेस्ट जो है was never held. और आखिर जब नई सरकार को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेस करनी पड़ी उस समय, तो वे बहुत लार्ज मेजॉरिटी से जीत गए। इंडिकेशन ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर के माध्यम से सरकार गिराने की साजिश नहीं थी। नहीं, वो तो इनका कहना है। सरकार ने ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं दी है अपने वो आगे भी कॉन्फिडेंस है कि वो सीएम बन सकते हैं। आज के प्रेस में तो ऐसा लगता है। Sir, how will you interpret this judgment? Will you say that this is a victory for BJP Sena, like they are claiming victory for themselves? Yes, who is in the seat of power today? What did they want and what is the result? I mean, you are claiming, in short, you are claiming victory in the face of obvious defeat. What is apparent, what is patent, it stares you in the face that they have lost. But if you are somebody who can't accept defeat because you're so used to being in power and getting your way, and of course because you have been in the past, you have been instigated by your alliance partners who are now also saying that you are not capable of being a chief minister. You were the wrong choice. सर, अगर स्पीकर ने 3 महीने के अंदर ये निर्णय नहीं लिया तो वापस उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट चाहिए। नहीं, अब तो वो सवाल कहाँ पैदा होता है। पहले तो स्पीकर को अप्रोच करें, तो देखते हैं स्पीकर क्या करता है, वो तो बाद में होगा। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि उनके पास और एक विंडो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ एमएलए एंड एमपी ना देखे, हर एफिडेविट जो है वो भी देखना चाहिए। तो उनका ये कहना है कि नहीं, वो इलेक्शन कमीशन एफिडेविट फाइल करने का जो फोरम था, वो इलेक्शन कमीशन के सामने का, वो तो किए भी हैं, दोनों पार्टीज ने किए, और वो एफिडेविट देखने के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला दिया, और वो फैसला जो था, दैट हैज गॉन इन फेवर ऑफ एकनाथ शिंदे फैक्शन। दैट इज नाउ पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनी मोर। बट एफिडेविट्स के आधार पे एकनाथ शिंदे फिर जीत गए ईसीआई के पास, और स्टे रिजेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस वर्डिक्ट का पॉलिटिकल फॉलोआउट आप कैसे देखते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स? यानी आप अभी लीगल इशू पूछ रहे हैं कि पॉलिटिकली क्या होगा? हाँ, बट आई एम नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मैं ग्राउंड लेवल की बात शायद मेरी एक्यूरेट नहीं हो सकती, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, जितने भी 3 गुट हैं, एनवीए सरकार, एनवीए पार्टी अलायंस के जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, हलचल तो है ही।
शेड्यूल 10 का गैर इस्तेमाल हुआ इसके बारे में बोल रहे हैं, और उसका जिस तरह से आपने लीगल देख के यूज किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? फिर से भी सवाल उठ सकते हैं कि शेड्यूल 10 में चेंजेस करने की जरूरत है, ऐसे भी बोला जा रहा है। शेड्यूल 10 में चेंजेस कौन लाएंगे? नहीं, बोला जा रहा था कि इसमें उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसमें चेंजेस करने की जरूरत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा नहीं। आपकी क्या राय है इसके बारे में? नहीं, वो देखिए, वो तो पार्लियामेंट के, सिर्फ पार्लियामेंट ही चेंज, ये परिवर्तन ला सकते हैं 10 शेड्यूल में, और इस समय तो ऐसे कोई सुझाव पार्लियामेंट के सामने नहीं है। सवाल यही होता जा रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ का फिर मतलब क्या है? अजीत पवार ने आज बोला है, अगर आंखों के सामने इतना ये हो रहा है, एमएलए को भागे ले जा रहे हैं, पूरा स्प्लिट दिख रहा है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका इतिहास है ये मामले में। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, देयर वाज अ प्री पोल अलायंस। प्री पोल अलायंस को किसने तोड़ा? जनता के साथ विश्वासघात किसने किया? मैंडेट किसके लिए था? और आइडियोलॉजी, पहले आइडियोलॉजिकली आप किसके साथ जुड़े हुए थे और किसके साथ गए अंत में? Will of the people is the most important aspect in a democracy, and that was betrayed by Uddhav Thackeray only to get chief minister's post. ये भूलिए मत, और कोई कारण था ही नहीं। आज तक उसने कारण नहीं दिया कि उन्होंने अलायंस क्यों तोड़ा, प्री पोल अलायंस, जिसके वजह से उसने करीबन 54 सीट्स हासिल किए। क्रेडिट था, श्रेय मोदी जी का था, और उसने ना सिर्फ अलायंस को लेकिन जनता को भी बिट्रे किया है। गद्दारी उनकी है। सर, ये एंटायर केस में गेम चेंजिंग मुद्दा कौन सा रहा ऐसा लगता है? वो तो जाहिर है, उनके इस्तीफा देने से तो पूरा खेल खत्म हो गया। So now the next stage to wait for is only the disqualification petition, and Mr. Rahul Narvekar has announced that he will follow the law and the guidelines laid down by the Supreme Court. उसका नतीजा के लिए आप वेट कीजिए। बाकी ये स्थिर सरकार है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनका जो स्थापना हुआ था वो कानून के मुताबिक है। वो ये स्पीकर का जो हियरिंग होगी नबम रेडिया के लिए, देखिए नबम रेडिया का कोई रिलेशन ही नहीं है इस केस। नबम रेडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है ये फ्यूचर के लिए हम इसको देखेंगे, ताकि जो मेन इशू उसमें ये है कि जब एमएलएस जो डिस्क्वालीफाई होते या ना होते हैं, जब भी उनको नोटिस मिलता है एमएलएस को, स्पीकर को, उस समय से वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर पे वो एंटर नहीं कर सकते। यदि एमएलएस उनको नोटिस देते हैं 179C के मुताबिक आर्टिकल, स्पीकर कैन नॉट टेक फर्दर स्टेप्स टू स्टार्ट द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर। अब द इशू इज when does this start? Does it start before the hearing takes place, or it starts right at the beginning? 14 days notice देना पड़ता है. There's a 14-day period for disqualification proceedings to start. Before 14 days, does it start when the notice is given or when the hearing takes place? तो सिर्फ किस स्तर पे स्पीकर को अपना हैंड को होल्ड करना चाहिए, यानी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन। उसका असर इसके ऊपर होगा। राहुल नार्वेकर जी का भी प्रेजेंट पोस्ट है स्पीकर नहीं, ही हैज गिवन डिस्क्वालिफाइड एमएलएस ने उनको दिया है 179C नोटिस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए ये कि 179C नोटिस जेन्युइन है
या सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए। यदि बोनाफाइड है 179C नोटिस तो फिर वो आगे डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन को सुन सकते हैं। लेकिन यदि उनको लगता है कि इसमें कुछ दम है, then he will not start the disqualification proceedings till his own position is cleared by the Legislative Assembly. That means the Legislative Assembly must vote again for him. लेकिन 3 बार हो चुका है। He has faced test of assembly for speakership on 3 occasions and he has won all 3 times. कंक्लूजन मतलब ये है कि 1 साल गवर्नमेंट को कुछ नहीं होगा। शायद ज़्यादा, 6.5 साल। Thanks, sir. Thank you.